So in the last class, we had studied about job analysis, right? So today what we are going to do, we are going to talk further about job design and job evaluation. Okay, so let's quickly look at the agenda as in what we are going to study in job design. So let me just pull it here. We'll be studying job design. What is actually job design? The approaches to job design, there are like 4 approaches. And in one of the approaches, like the motivational approach, we also have a job characteristic model. We'll talk about that. And then we'll talk about different methods that are used in job design. All right. So quickly we'll just start with the class today. In our last class, we had one of the questions while I was teaching you job analysis about questionnaire. And I told you that PAQ, position analysis questionnaire, is supposed to be a quantitative measures. See, questionnaire, I don't remember who had asked this question to me, but yes, questionnaire are generally quantitative in nature because like I told you, Likert scale के ऊपर होता है, predefined questions होते हैं और उनका हम numerical value में आंसर निकालते हैं, इसलिए वो quantitative होते हैं. But जैसे मैंने उस दिन कहा था कि हमेशा क्वेश्चनर क्वांटिटेटिव होते हैं जब हम लाइकर्ट में निकालते हैं. कभी कभी क्वेश्चनर हमारे क्वालिटेटिव भी होते हैं जब हम कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स लिखवाते हैं. जैसे कि यूपीएससी में जब क्वेश्चन आंसर्स आपका राइटिंग पार्ट होता है तो उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है एंड यू राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. When there is a comprehensive answer related to a question, then it's a qualitative one. But mostly when we use a Likert scale, when we have predefined questions and predefined answers to it, wherein you have to mark the answers and we need a numerical value out of it, that's one of the reasons that we quantify questionnaires as a quantitative measure. Otherwise, if there is a particular question and we are writing a comprehensive answer for it, then it is a qualitative question. All right. Now let's start with job design. अब job design क्या है? आप लोगों को सबको पता है what job exactly is? तो job को हम organize करते हैं. The way we set up our task, we organize the entire job in an organization that is called as job design. अब हम job design करते क्यों हैं? So basically, job design is done so that we establish the roles and responsibilities. कोई भी system हो, कोई भी procedure हो. तो job design is done so that we can satisfy the work environment. तो हम अगर job design को बोले, then we say that we structure the job. Job design को हम क्या बोले? That we structure the job in a manner that it satisfies 2 things. Which are the 2 things? The technical organizational requirement and the human requirement of a person. Just a second. ठीक है? तो जॉब को डिजाइन करना. जॉब को हम डिजाइन कैसे करते हैं? The reason why we do the job design is so that जो भी job हो, it is well suited to the employees, their abilities and their need, plus it also contributes to the overall organizational success. तो job को डिजाइन करना मतलब कोई भी आपका जॉब हो, उसके जो भी टास्क हो, उसको ऐसे डिजाइन करना एंटायर जॉब को कि वो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के काम आए. इट सैटिस्फाई द वर्क एनवायरनमेंट. तो आप ये 2 पॉइंट हमेशा याद करके रखना कि जॉब डिजाइन इज बेसिकली व्हाट दैट इट इज दैट वी आर स्ट्रक्चरिंग अ जॉब इन अ मैनर दैट इट सैटिस्फाई 2 थिंग्स. सैटिस्फाइज 2 थिंग्स. वो 2 थिंग्स हमारी क्या हैं? लेट्स जस्ट सी. वो 2 थिंग्स हैं. एक है हमारी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट और दूसरा है ह्यूमन रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन. जैसे मेरा जॉब है आपको पढ़ाना, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ये बोर्ड जिसमें मैं लिखती हूं, ये कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब मेरी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है फॉर माय पर्टिकुलर जॉब. इसलिए ये सेटअप ऐसे किया गया है कि मैं आपको पढ़ा सकूं. प्लस मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे ऐसी कोई भी जगह पे ना बिठा दिया जाए जहां पे बहुत सारी आवाज आ रही हो. लाइक व्हाट आई डिड वाज व्हेन आई वाज जस्ट टीचिंग यू और मुझे कहीं बाहर से आवाज आई, मैंने अपनी दरवाजा बंद कर दिया सो दैट द वॉइस इज लाउड एंड क्लियर. So basically in job design, what we are doing is we are just organizing the task in a manner so that it satisfies the work requirement also and the human requirement also. That is basically job design. ठीक है? अब हम देखते हैं हमारी approaches to job design. कौन कौन सी approaches हैं? There are 4 approaches to job design. Let's look at each one of them.
तो पहली अप्रोच है, हम उसको कहते हैं इंजीनियरिंग अप्रोच, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैकेनिस्टिक अप्रोच। अब होती क्या है इंजीनियरिंग अप्रोच और मैकेनिस्टिक अप्रोच? इंजीनियरिंग अप्रोच और जो मैकेनिस्टिक अप्रोच होती है, ये कहती है बेसिकली इट इज बेस्ड, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में बेस्ड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। तो आप मैकेनिस्टिक का मतलब ये होगा कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस को आप एक मशीन की तरह ट्रीट करते हो, द ह्यूमंस आर बीइंग ट्रीटेड एज मशीन। तो जो भी उनका टास्क है, जो भी उनका काम है, वो पहले से ही मैनेजमेंट डिसाइड करके रहती है एडवांस में, व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट नीड्स टू बी डन, कितनी डेडलाइंस है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हार्श अप्रोच थी, जहां पे कि हम ये नहीं देखते हैं कि हमें ह्यूमंस की तरह उनके साथ ह्यूमन रिलेशन बनाना चाहिए, नहीं, हम बोलते हैं कि वो एक मशीन की तरह है। दैट्स द रीजन हाउ वी हैव डिजाइन्ड अ जॉब। हमने एक जॉब को इसलिए, ये जॉब का डिजाइन है, ह्यूमंस के लिए बात नहीं कर रहे। मेरा कहने का ये मतलब है, हम जॉब को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो ह्यूमंस उसको कर रहे हैं, दे आर मशीन्स हु आर डूइंग द जॉब। तो हमारा बेसिक चीज ये रहेगी मैकेनिस्टिक अप्रोच में, दैट वी ट्रीट ह्यूमंस फॉर अचीविंग आवर गोल, कि हमारा मैक्सिमाइज हमारा आउटपुट हो जाए और मिनिमाइज हमारी कॉस्ट हो जाए। तो जॉब को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं वेर द मशीन्स आर डूइंग द जॉब, और हमें सिर्फ जॉब को ऊपर ध्यान रखना है। एवरीथिंग इज प्लान्ड इन एडवांस, व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, डेडलाइंस, एवरीथिंग। ठीक है, दैट्स अ मैकेनिस्टिक अप्रोच ऑफ जॉब डिजाइन। इस तरीके से जॉब को डिजाइन किया जाता है, राइट? एंड इट्स अ वेरी हार्श अप्रोच। जो हमारी दूसरी अप्रोच है, दैट इज मोटिवेशनल अप्रोच। ठीक है, मोटिवेशनल, पहले मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ ये वाली ह्यूमन रिलेशन और बायोलॉजिकल अप्रोच, क्योंकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। अब आती है हमारी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बायोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें जैसे हमने बोला कि इसमें तो हमने देख लिया कि मैकेनिस्टिक अप्रोच में कि हमने देख लिया कि जॉब को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मशीन्स की तरह आम काम करे, बट नहीं, यहां पे हम जॉब को ऐसे डिजाइन करते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, दैट इट रिकॉग्नाइजेस जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी सर्टेन नीड्स हैं, एंड they require certain motivation, and jobs should be designed in such a manner that they cater those needs. Human relation approach की जो भी हमारा जॉब हो, उससे हमें जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा हो, वर्क लाइफ बैलेंस भी हो रहा हो, एम्प्लॉय की वेलबींग भी हो, इस तरीके से हम जॉब को डिजाइन करते हैं इन द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है ना, ये बेसिकली बायोलॉजिकल अप्रोच का एक मैकेनिक्स है, जिसमें हम अर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज अर्गोनॉमिक्स? अर्गोनॉमिक्स में हम ये बात करते हैं कि जॉब शुड बी डिजाइन इन अ मैनर कि जो फिजिकल डिमांड है वो जॉब की रिड्यूस हो जाए इन एनी फॉर्म। ठीक है, जॉब इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि कोई भी इंजरी ना हो, कोई भी डिस्कंफर्ट ना हो, और कोई भी फटीग ना हो, कोई हार्म ना हो। सो रीडिजाइन द वर्क टू मेक वर्क फ्रेंडली, दैट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो आप देख रहे हो ना कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में क्या हो रहा है कि जॉब को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि आपको वर्क का सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है। ठीक है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है, वर्क सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है, तो आपको ये सब चीजें मिल रही हैं। दैट्स अ ह्यूमन। हम जॉब को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अर्गोनॉमिक्स को ध्यान रखना, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क अर्गोनॉमिक्स, जिसकी हम बात करते हैं, जो एक वर्ड है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स होता है स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट। तो अर्गोनॉमिक्स ये कहता है दैट जॉब शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट जॉब, जो फिजिकल डिमांड है जॉब पे, फिजिकल डिमांड ऑन द जॉब इज रिड्यूस्ड एंड एनीवन कैन परफॉर्म द जॉब, और कोई इंजरी ना हो, कोई डिस्कंफर्ट ना हो, और कोई फटीग ना हो। इट डज नॉट हार्म द वर्कर। दैट्स अर्गोनॉमिक्स। तो जॉब को हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बायोलॉजिकल अप्रोच में। ठीक है, नाउ कम्स दी मोटिवेशनल अप्रोच। मोटिवेशनल अप्रोच ये कहता है कि जॉब शुड बी डिजाइन इन सच अ मैनर कि जॉब से मोटिवेशन आए। जॉब से मोटिवेशन कब आएगा? जब एम्प्लॉय अपनी जॉब को इंजॉय करेगा, उसकी जॉब इंटरेस्टिंग होगी। जब उसकी जॉब इंटरेस्टिंग होगी, जब उसका जो जॉब होगा
वो इंजॉय करेगा अपनी उस जॉब को, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल ही डू, ही विल वर्क हार्ड. व्हेन ही वर्क्स हार्ड, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिवॉर्ड देम. वो रिवॉर्ड से क्या होगा, उनको सेटिस्फैक्शन आएगा, और सेटिस्फैक्शन से क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन से क्या होगा, इंक्रीज इन परफॉर्मेंस होगी. सो मोटिवेशनल अप्रोच सेज दैट द जॉब शुड बी डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट द पर्सन और द एम्प्लॉय हु इज डूइंग द जॉब इज एंजॉयिंग देयर जॉब, द जॉब बिकम्स इंटरेस्टिंग. उस इंटरेस्टिंग की वजह से क्या होगा, दे विल वर्क हार्ड. वो वर्क हार्ड करेंगे तो हम उनको क्या देंगे, रिवॉर्ड. जब हम उनको रिवॉर्ड देंगे तो उनका सेटिस्फैक्शन क्या होगा, इंक्रीज. जब उनका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा तो उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा. मोटिवेशन इंक्रीज होगा तो उनका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी. दैट्स द मोटिवेशनल अप्रोच ऑफ जॉब डिजाइन. लास्ट अप्रोच जो हमारी आती है वो है हमारी परसेप्चुअल अप्रोच. वो हमारी कौन सी अप्रोच है, परसेप्चुअल अप्रोच. परसेप्चुअल अप्रोच क्या कहती है, परसेप्चुअल अप्रोच ये कहती है दैट this particular approach focuses on how individual perceives their job, their task and उसका इंपॉर्टेंस. जैसे मैंने परसीव किया, मैंने अगर परसीव किया कि मेरी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, और ये बहुत सारे लोगों के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट दे रही है मेरे परसेप्शन के ऊपर से, इसलिए मेरा जॉब डिजाइन अच्छा है. तो ये अप्रोच ये फोकस करेगी कि इंडिविजुअल जॉब को इस तरीके से डिजाइन, ये वो अप्रोच है जॉब डिजाइन की जो ये बताती है कि इंडिविजुअल अपनी जॉब को कैसे परसीव करता है. अगर मैं अपनी जॉब को अच्छा नहीं परसीव करूंगी तो मुझे सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव ही लगता रहेगा. बट इफ आई परसीव गुड थिंग अबाउट माई जॉब, माई टास्क, and I realize that my job, my task is giving an important impact or placing an important impact on the student's life, I realize the importance attached to my task, then my job design will be easier. ठीक है, ये 4 अप्रोचेस होती है. If there is any question regarding the approach, ask me right now and then we'll move to job characteristic model. कोई question? Any question? You can raise your hands, I can unmute you and you can ask me the question here in front of anyone. That's not a problem at all. Okay, if there is no question, can any one of you who is listening and are there in the class give me a hands up that I should move forward towards another slide? Shrishti has a question. Okay, good Shrishti. Pucho. Hello. Hi. Yes, ma'am. So basically, I wanted to ask that what is the difference then in human relation approach and motivational approach? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में मैंने यहाँ पे कहा पे मैंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में आपसे क्या कहा कि हम जॉब को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि इंसान को कोई तकलीफ ना हो, उसको कोई फटीग ना महसूस हो. आई एम मेंटेनिंग ह्यूमन, मैं ध्यान रख रही हूं अपने ह्यूमंस का, अपने एम्प्लॉयज का. बट मोटिवेशनल अप्रोच में मैंने ध्यान रखने की बात नहीं कही. मैंने क्या कहा कि जॉब को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि ह्यूमंस को मजा आए काम करने में, वो मजा आए, उनको इंटरेस्टिंग लगे अपना जॉब. गॉट द डिफरेंस? यस मैम, दैट्स द डिफरेंस. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सृष्टि अपने आप को म्यूट कर लो. Job, Garvita, we are just coming to the job characteristic approach. It's a model which was given by Hackman and Ullman. ठीक है, जो ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है, ये मॉडल भी जिसको हम बोल सकते हैं ये मोटिवेशन से ही आया है. दिस पर्टिकुलर मॉडल वाज गिवन बाय हैकमैन एंड ओल्डमैन. बहुत इजी सा है, ठीक है, नोट्स अपने आप पढ़ लेना, मैं मीनिंग समझा देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. बहुत इजी सी चीज है, ठीक है. जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है, ये बिल्डअप करने की कोशिश करता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आता है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन. What job characteristic model does it? It focuses on building your intrinsic motivation. इसमें 5 हमारे फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर है स्किल वेराइटी. स्किल वेराइटी कहता है कि इंडिविजुअल व्हेन एंगेजेस इन डिफरेंट एक्टिविटीज देन दे रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स. अब आप ये सोचो, आपको एक ही काम दे दिया गया है, ठीक है, आपके पास एक ही काम है,
आप करते करते उसको बोर हो जाओगे। बट आपके पास अगर डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स है, वेराइटी ऑफ स्किल्स है, तो वो वेराइटी ऑफ स्किल्स को आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू कैन ब्रेक द मोनोटनी ऑफ योर टास्क। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूटिलाइज ऑल योर स्किल्स एंड यू कैन हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्किल्स। जैसे आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप कस्टमर सर्विस एनवायरमेंट में काम करते हो और आप कस्टमर सर्विस यूके के कस्टमर सर्विस में करते हो, बट क्योंकि आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आपने इंग्लिश के अलावा फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी है, ऑस्ट्रेलियन भी सीखी है, न्यूजीलैंड की जो लैंग्वेज है वो भी सीखी है। Customer service is what you like that job, you like talking to people, you like solving their problems. लेकिन आपके पास डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी उस कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा ले सकते हो, दैट यू कैन वर्क in an atmosphere which has got Australian and New Zealand customers. तो देख रहे हो स्किल वैरायटी की वजह से क्या हो रहा है, आप अलग अलग देशों के कल्चर भी सीख जाओगे काम करते करते। So what the skill variety is doing is it is breaking the monotony. It is breaking a monotonous regular job. आप अपनी जो रिपीटेडली एक ही स्किल का जो काम कर रहे हो उसको वो हटा के अगर आपके पास डिफरेंट स्किल्स होंगी तो आप डिफरेंट काम कर सकते हो। That's what it says, that the individual engages in different activities that require different skills. When you do that, your motivation increases. That is your intrinsic motivation. That's skill variety. अब क्या होता है, इसमें दूसरी चीज आती है टास्क आइडेंटिटी। टास्क आइडेंटिटी ये कहती है कि आप अपने किसी भी टास्क को, जो भी आपका टास्क है, ठीक है, उसको अगर आप अच्छे से जानते हो, यू नो योर टास्क वेरी वेल, तो आप उसको स्टार्टिंग भी आप ही करोगे और फिनिश भी आप ही करोगे। सो यू शुड बी वेल इक्विप्ड एंड आइडेंटिफाइड विद एनी टास्क दैट यू आर डूइंग। अगर मैं एचआरएम पढ़ा रही हूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैं एचआरएम का टॉप टू बॉटम मैंने पढ़ाना शुरू किया, आई फिनिश इट ऑफ। Any task, you should be well identified with your task so that you can start it and you can finish it. That gives you also motivation. Task significance. Task significance का मतलब हो गया कि important कितना है तुम्हारा task. How much impact that task is creating on others' life. If employees feel that their work is very important to the organization, they are motivated to do that particular task. और मुझे ऐसा लगे कि मेरा टास्क तो अननोटिस्ड है, ठीक है, इट इज नॉट इफेक्टिंग एनीवन, तो मुझे काम करने का मन ही नहीं आएगा अंदर से, मेरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी ही नहीं, ठीक है। फिर आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी कहती है कि डज योर जॉब ऑफर यू एनी काइंड ऑफ फ्रीडम वेयरइन द एम्प्लॉयज कैन मेक डिसीजन और डिसाइड दैट हाउ टू कैरी आउट देयर वर्क। जब भी हमें ऑटोनॉमी, देखो ऑटोनॉमी हमेशा तो नहीं हो सकती है क्योंकि there are certain rules and regulations that you follow, but at times अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार ये काम तुम, मुझे लगता है कि तुम सही करोगे because you are good at decision making, you are good at providing the resolutions, then you feel that I have been given that freedom to take decision, तो आपको intrinsic motivation बढ़ता है। प्लस जॉब फीडबैक, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने अच्छा काम किया है, ठीक है, चाहे आपने खराब भी काम किया हो, बट आई एम गिविंग यू अ फीडबैक एंड फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर improving the performance also, plus it gives you motivation if you have a positive job feedback. तो ये जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल के जितने भी ये है ना, ये क्या करते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को करते हैं। स्किल वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल। टास्क आइडेंटिटी, कि टास्क के बारे में आप इन एंड आउट सब जानते हो, शुरुआत कर रहे हो खत्म भी आप कर रहे हो। टास्क सिग्निफिकेंस, आपका टास्क कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी लाइव्स इट इज इंपैक्टिंग। ऑटोनॉमी, डू यू हैव द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस और नॉट। जॉब फीडबैक इज उसके बारे में आपको फीडबैक मिलना, आपने कैसा काम किया है। दैट्स अ जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल एंड इट कम्स अंडर द मोटिवेशनल अप्रोच। रीजन बीइंग इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आया समझ में गर्विता? इज इट क्लियर टू यू? प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स। नाइस, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है इसमें। ओह ये क्या हो गया, हाँ चलो अब हमारे आते हैं मेथड्स ऑफ जॉब डिजाइन। डिफरेंट टाइप से हमारे मेथड्स है जॉब डिजाइन के, हम एक एक करके अपने सारे जॉब डिजाइन के मेथड्स देखेंगे, ठीक है। जॉब स्पेशलाइजेशन। जॉब स्पेशलाइजेशन कहता है व्हेन यू हैव गॉट स्पेसिफिक स्किल्स। हम जॉब को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। जॉब स्पेशलाइजेशन मतलब कि आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स हैं, ईदर यू आर एक्सपर्टाइज इन दोज स्किल्स एंड यू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज। उससे क्या होता है, आप प्रोफिशिएंट हो जाते हो अपने काम करने में।
जैसे कि मैं HR में प्रोफिशिएंट हूं, कोई और मैम है वो OB में प्रोफिशिएंट है, मीता मैम है वो लेबर लॉ में प्रोफिशिएंट है। तो स्पेसिफिक स्किल्स हैं और एक्सपर्टाइज हैं, ठीक है। मोनोटोनस हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट यस these makes us expertise in our job field and we are proficient in our work। जैसे आपने देखते हो ना, डॉक्टर जब MBBS करते हैं तब तो नॉर्मल सभी लोग पढ़ते हैं उस MBBS को, राइट। लेकिन जब हमें MD करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई गायनी का डॉक्टर बन जाता है, कोई ENT का डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर बन जाता है, कोई पेडिट्रिशियन बन जाता है। तो स्पेसिफिक स्किल्स के हिसाब से भी जॉब स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट दोनों को ध्यान से समझना और सुनना। जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ जॉब, एक्सपेंशन ऑफ जॉब एट सेम लेवल। मतलब आप उसी लेवल में हो लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ गई हैं। आप उसी लेवल में हो, मैं टीचर के ही लेवल में हूं, तो पढ़ाने के अलावा इन्होंने मुझे बोल दिया है टीचर ही हूं मैं, कोई ऊपर लेवल में नहीं चली गई हूं, बट मैं नॉर्मल जैसे टीचर थी मैं वैसी ही टीचर हूं। इन्होंने बट मुझे मेरा जॉब को एक्सपैंड कर दिया, एनलार्ज कर दिया है। क्या बोलते कि आप पढ़ा तो रही थी मैम, लेकिन अब आप क्या करोगे, आप नोट्स भी प्रिपेयर करोगी, आप क्वेश्चन बैंक भी रेडी करोगी, ठीक है, और आप क्विज भी प्रिपेयर करोगी, आप क्लास टेस्ट भी लोगी, सारा काम आप करोगी, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, जैसे कस्टमर फीडबैक, एक आपका एम्प्लॉय है वो कस्टमर का फीडबैक लेता था, सिर्फ फीडबैक का काम लेता था, उसकी प्रोफाइल वही है, वो आज भी कस्टमर फीडबैक एम्प्लॉय ही कहलाएगा, बट आपने उसकी जॉब बढ़ा दी है। क्या कर दिया आपने, बोला फीडबैक भी तुम लोगे, डेटा भी तुम रिकॉर्ड करोगे, डेटा एनालिसिस भी तुम करोगे और रिपोर्ट भी तुम ही जनरेट करोगे। ये हो गया जॉब एनलार्जमेंट, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ जॉब क्या हो गया, एट द सेम लेवल। बट जॉब एनरिचमेंट में क्या होगा कि जॉब एनरिचमेंट में जो डिफरेंशिएशन आएगा वो बोलेगा कि आपका वर्टिकल एक्सपेंशन भी होगा, मतलब कि आप हायरार्की भी आपकी बढ़ेगी, मतलब आपका प्रमोशन भी होगा, प्रमोशन के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। आपकी जॉब इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, आपकी जॉब चैलेंजिंग भी होगी और आपकी जो जॉब की सेटिस्फैक्शन होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो जॉब इनरिचमेंट है ना, ये एक मोटिवेशन की टेक्निक है। जॉब एनलार्जमेंट को नहीं हम बोल सकते मोटिवेशन की टेक्निक, बट जॉब इनरिचमेंट इज अगेन अ मोटिवेशनल टेक्निक। क्या डिफरेंस है, उसी लेवल पे आपका कोई हायरार्की में चेंज नहीं, आप उसी लेवल में आपकी ड्यूटीज बढ़ा दी गई हैं, इसमें आपका प्रमोशन भी हुआ है, आप हायरार्की लेवल में ऊपर नीचे भी गए हो। तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट जॉब एनलार्जमेंट मींस दैट जॉब एनरिचमेंट, नहीं सॉरी, जॉब एनरिचमेंट मींस जॉब एनलार्जमेंट, बट जॉब एनलार्जमेंट डज नॉट मीन जॉब enrichment। समझ में आया मैंने क्या बोला, जॉब एनरिचमेंट मींस जॉब एनलार्जमेंट, बट जॉब एनलार्जमेंट डज नॉट मीन जॉब एनरिचमेंट। क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया कि मैंने क्या कहा, सेम लेवल पे देन इट्स जॉब एनलार्जमेंट, अगर आपका प्रमोशन भी हुआ है, हायरार्की में ऊपर भी गए हो, तो उसको हम बोल सकते हैं जॉब एनरिचमेंट। अब आता है जॉब रोटेशन। अब हम देखते हैं जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है आप एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हो। ये तो आपको पता कि मैं अभी इस जॉब में हूं, मैं दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रही हूं, बट एक चीज होती है इसमें, यू शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, बट जो बेसिक स्किल्स होती हैं, बेसिक स्किल्स वो सेम रहती हैं, तभी आप उस जॉब पे रोटेट कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपको कहा आप कस्टमर सर्विस करते हो, कस्टमर सर्विस क्या करता है, इंप्लॉयज की क्वेरीज को लेता है, तो आपके पास क्वेरी सॉल्विंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है। मैंने आपकी जॉब रोटेट करी कि आपको, पहले आप इंडिया मार्केट के कस्टमर्स को सर्व करते थे, अब मैंने आपकी जॉब रोटेट क्या कर दी, आपको यूएस कस्टमर सर्विस दे दी, फिर मैंने आपको यूके की कस्टमर दे दी, फिर मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की कस्टमर सर्विस दे दी। जो बेसिक स्किल्स थी आपकी, क्या, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो सेम थी, मैंने आपका बस जॉब रोटेट करी, आपको कहीं और भेज दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, नर्स, जो एक नर्स है उसकी बेसिक स्किल्स क्या है, केटर टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट्स,
केयरिंग करना पेशेंट्स की, ये एक जॉब है नर्स की। अब मैंने क्या किया, एक नर्स थी वो कर रही थी मैटरनिटी डिपार्टमेंट में काम, जहां पे बेबीज पैदा होता है, गायनी डिपार्टमेंट में काम, ठीक है। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है उसकी बेसिक स्किल्स क्या है, टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स, टेकिंग केयर ऑफ द बेबीज, ठीक है। मैंने उस नर्स को गायनी डिपार्टमेंट से उठा के न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में डाल दिया या ओटी में डाल दिया, तो मैंने उसकी जॉब को रोटेट कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, डिफरेंट जॉब में तो डाल दिया, लेकिन जो बेसिक स्किल्स थी वो सेम रहेंगी और जो वेजेस उस बेसिक स्किल से अटैच्ड होंगी वो सेम रहेगी। दैट्स कॉल्ड एज जॉब रोटेशन। तो एग्जाम्पल से याद रखना कि जॉब रोटेशन क्या है। अब आता है हमारा जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन में हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम जॉब को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब हम जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब को हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, एक स्टोर मैनेजर है, वो क्या काम कर रहा है, सारा काम कर रहा है स्टोर मैनेजर। स्टोर भी देख रहा है, स्टोर को ओपन भी कर रहा है, बिल भी बना रहा है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको देख भी रहा है, उनकी क्वेरीज और नीड को भी देख रहा है, ठीक है। ये सारा काम स्टोर मैनेजर कर रहा है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, आई विल एलिमिनेट टास्क फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग रोल एंड फोकस ऑन अ स्पेसिफिक रोल। तो मैं क्या करूंगी, उसके जितने ये सारे टास्क हैं उनको डिफरेंट इंडिविजुअल्स को दे दूंगी। जैसे स्टोर मैनेजर ने, मैंने बोला वो सारा काम वो कर रहा है, बट मैंने क्या किया, उसके जॉब को ब्रेक डाउन कर दिया डिफरेंट टास्क में। जैसे एक टास्क हो गया उसका स्टोर ओपन करना, ठीक है। दूसरा टास्क उसका हो गया बिलिंग करना। तीसरा टास्क हो गया उसका स्टॉक की इंक्वायरी रखना। एक टास्क हो गया उसका फीमेल कस्टमर्स की नीड को देखना। एक टास्क हो गया उसका मेल कस्टमर्स की नीड को देखना। ऐसे उसके डिफरेंट टास्क हो गए। मैंने उसको बोला, मैंने उसकी डिफरेंट टास्क को डिफरेंट इंडिविजुअल्स को दे दिया। ये कोई एक इंडिविजुअल कर रहा है, ये दूसरा इंडिविजुअल कर रहा है, ये तीसरा इंडिविजुअल कर रहा है, चौथा इंडिविजुअल कर रहा है, पांचवा इंडिविजुअल कर रहा है। मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया और उसको बोला कि तुम सिर्फ मैनेज करोगे, ये सब काम कोई और करेगा, तुम सिर्फ मैनेज करोगे उस चीज को। तो मैंने उसके काम को क्या कर दिया, सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया। दैट्स कॉल्ड एज जॉब सिंप्लीफिकेशन। अब आता है हमारा जॉब एक्सटेंशन। जॉब एक्सटेंशन का मतलब होता है कि इसका ऑपोजिट कर सकते हो, जॉब सिंप्लीफिकेशन का ऑपोजिट आप कर सकते हो जॉब एक्सटेंशन, ठीक है। जॉब सिंप्लीफिकेशन का आप ऑपोजिट कर सकते हो जॉब एक्सटेंशन। जॉब एक्सटेंशन में मैंने क्या किया कि खूब सारे जॉब को एक जॉब बना दी। फॉर एग्जाम्पल, रिसेप्शनिस्ट का जॉब है, रिसेप्शनिस्ट का जॉब है कि जितने लोग आएंगे रिसेप्शन पे उनको देखना, वेलकम करना, ठीक है। अब मैंने एक रिसेप्शनिस्ट रखी, रिसेप्शनिस्ट को मैंने बोला टाइपिंग का कुछ काम है, फाइल क्लर्क का कोई काम है, क्लर्क का, और कस्टमर की इंक्वायरी, कस्टमर कॉल्स, वेलकमिंग। तो ये बहुत सारे काम थे और उसको मैंने कर दिया, इनको बोल दिया जॉब ए और उस जॉब का नाम रख दिया रिसेप्शनिस्ट। तो मैंने क्या किया, ऑपोजिट हो गया, जॉब एक्सटेंशन और जॉब सिंप्लीफिकेशन। ये क्या हो गया आपका, ऑपोजिट हो गया। गॉट द पॉइंट? आकृति कंफ्यूज क्यों करना है, जॉब रोटेशन को अलग ही रखो, जॉब एनलार्जमेंट को अलग ही रखो। आपको ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि जॉब रोटेशन इज अ सबसेट और अ पार्ट ऑफ जॉब एनलार्जमेंट। ये सब जॉब डिजाइन के मेथड्स है, उसको अलग ही रखो। मतलब इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है ना कि जॉब रोटेशन सबसेट है जॉब एनलार्जमेंट का, क्योंकि जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट बात एक ही है, बट एक में आपका हायरार्की लेवल जाता है और एक में नहीं जाता है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट आई हैव ट्राइड टू मेंटेन दैट connection, job enlargement and job enrichment. Don't try to confuse it with job rotation. उसको अलग ही रहने दो, बस examples के through तुम लोग समझो. And does the remuneration always increases with the increase in responsibility, job enlargement? No, does not happens. क्या पता आपका नहीं बढ़ाया गया है, बट जॉब एनरिचमेंट में आपका प्रमोशन हो रहा है तब हो सकती है, जॉब एनलार्जमेंट में इट इज नॉट नेसेसरी, मे बी इट इज नॉट देयर ऑल्सो कि इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल इंक्रीज इन योर वेजेस और रेम्यूनरेशंस, नॉट नेसेसरी एंड हो भी सकता है बट नॉट नेसेसरी। बट यस, जॉब एनरिचमेंट में जब हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं तभी कभी कभार कैसे होता है, प्रमोशन आपका हुआ है
मैंने आपको मैनेजर से एसोसिएट मैनेजर बना दिया है, बट मे बी द सैलरी डज नॉट इंक्रीज, क्योंकि इस साल आपका इंक्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, और ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हम 2 इंक्रीमेंट एक साथ नहीं दे सकते, हम अगले साल आपकी सैलरी बढ़ाएंगे. So don't try to confuse all these words by putting remuneration and salary. Just try to understand the basic concept and meaning of these words. जॉब सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम्पल दोबारा से समझने की कोशिश करो. एक जॉब है, स्टोर मैनेजर है, मैंने एक स्टोर मैनेजर रखा है, ठीक है. जैसे मैं एक स्टोर मैनेजर हूं, मैं एक स्टोर में काम करती हूँ, ठीक है. स्टोर मैनेजर का मैंने सिर्फ एक स्टोर मैनेजर हूं मैं, और मैं सारा काम करती हूँ. मैं स्टोर को खोलती भी हूँ, मैं स्टोर में बिलिंग होती है, बिलिंग भी करती हूँ, कस्टमर्स आते हैं तो उनकी क्वेरीज भी दिखती हूँ, उनको कपड़े भी दिखाती हूँ, मैं जो स्टॉक है उस स्टॉक का भी काम देख रही हूँ, कितना स्टॉक खत्म हो गया, सारा मेरा काम है एज अ स्टोर मैनेजर. बट मैंने क्या किया, जॉब को सिंप्लीफाई कर दिया. मेरे जॉब के सारे काम थे एज अ स्टोर मैनेजर, ठीक है. मैंने कर दिया कि मैं सिर्फ मैनेज करूंगी लोगों को, ठीक है, और जॉब को. बाकी जो मेरे सारे काम थे वो मैंने बाकी इंडिविजुअल्स को दे दिए. सो व्हाट आई हैव एक्चुअली डन इज आई हैव डिजाइन्ड, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन all my tasks and assigned them to different individuals. That's what I have done in job simplification, which is just an opposite of job extension, because job extension में क्या हो रहा है, extend कर दिया आपकी job. आप खाली रिसेप्शनिस्ट थे, उसमें मैंने टाइपिंग भी डाल दिया, क्लरिकल का काम भी डाल दिया, कस्टमर कॉल्स भी डाल दी, वेलकमिंग भी डाल दिया, और उसको पूरा मैंने रिसेप्शनिस्ट के जॉब में डाल दिया. ऑलराइट, नाउ वी हैव ओके. इसमें जॉब इंजीनियरिंग दिया गया है, आप लोग जॉब इंजीनियरिंग देख सकते हो अगर चाहो तो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वांट, इफ इट इज नॉट रिटन हियर, लेट मी जस्ट सी. ओके, अच्छा, डी जॉबिंग वहां पे दे दिया है, चलो कोई नहीं. जॉब इंजीनियरिंग इज व्हाट वी आर, व्हाट एनीबडी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट जॉब इंजीनियरिंग इज. जॉब इंजीनियरिंग में हम क्या काम करते हैं? राइट, री इंजीनियरिंग. शिखा, री इंजीनियरिंग, व्हाट इज जॉब री इंजीनियरिंग? जॉब री इंजीनियरिंग तो पता होगा ना? हाँ हाँ शिखा, अनम्यूट, रेज योर हैंड. हाँ बताओ. Ma'am, we combine few jobs into one. That's re-engineering of job. क्या होता है? That includes various tasks, and we reallocate those tasks into a single job. That's job re-engineering basically. एग्जाम्पल से बताओ कोई. Ma'am, for example, the same example of receptionist, in which we are including typing and typing courier services extra, and we conclude them into a single job of receptionist only. So we are re-engineering the job of receptionist. अच्छा ठीक है, चलो. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू चेक व्हाट जॉब इंजीनियरिंग इज. कुछ अपना भी करके देखो, और नहीं आता है फिर मैं दोबारा से बताऊंगी. बिफोर द क्लास एंड्स आई विल टेल यू व्हाट जॉब री इंजीनियरिंग इज, ठीक है, और व्हाट जॉब इंजीनियरिंग इज, ठीक है. चलो आगे देखते हैं. देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट आई वांट यू टू नो. व्हाट इज फ्लेक्सी टाइम? गर्विता, अच्छा गर्विता बता रही है. ओके, आई हैव गॉट पीपल लिसनिंग इन माय क्लास. हाँ बताओ गर्विता. मैम, अकॉर्डिंग टू मी जॉब इंजीनियरिंग मींस कि जैसे हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें हमारा ज्यादा टाइम लग रहा है या फिर ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, तो हम उसको वापस से एनालाइज करेंगे और हम उसको मतलब वापस से देखेंगे, देखेंगे कि हम उसको कैसे एफिशिएंटली करें जिससे कि हमारे रिसोर्सेज कम वेस्ट हो और हमारी आउटपुट जो हो वो ज्यादा हो. दैट इज कॉल्ड एज जॉब री इंजीनियरिंग. एग्जैक्टली, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. काइजन का आपने नाम सुना होगा कि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में लेते हैं कि हम कम से कम वेस्टेज करें. तो जॉब इंजीनियरिंग भी यही है कि हम काम को इस तरीके से करें कि मैक्सिमम आउटपुट हो, रिसोर्सेज हमारे कम लगे और हमें सबसे ज्यादा हमारी एफिशिएंटली हमारा काम हो जाए. दैट इज कॉल्ड एज जॉब री इंजीनियरिंग. वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू. चलो फ्लेक्सी टाइम देखते हैं कि फ्लेक्सी टाइम क्या होता है. फ्लेक्सी टाइम आपको पता ही है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं रात को काम कर सकती हूँ. जैसे नॉर्मल टाइमिंग क्या होता है? नॉर्मल टाइमिंग ये होता है कि हमने 8 to 9 हमारी जॉब है, ठीक है,
8 in the morning till 9 PM in the job. तो मैंने कह दिया कि यार नहीं, मुझे तो आज काम नहीं हो पाएगा, मैं एक काम करूंगी, मैं 8 to 12 काम कर लूंगी, रिमेनिंग वाला मैं क्या बोलते हैं 8 to 9 है या 8 to 5 कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 8 to 5 मेरा टाइम है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग मैंने कर लिया। मैंने बोला मैं 8 to 12 करूंगी, पूरे के पूरे आवर्स नहीं करूंगी, और उसके बाद मैं 2 घंटे का ब्रेक लूंगी और उसके बाद मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगी, चाहे मेरा 7 o'clock PM तक। तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग, आई एम चूजिंग माई ओन टाइमिंग, ठीक है, कि मुझे इतने घंटे काम करना है और इतने घंटे करना है। उन्होंने बोला कि आपको मॉर्निंग में काम करना है, मैं बोलूंगी नहीं यार, today I've got some work at my place and I have to take my child outside to an hospital, yeah, for games and everything, so I will do my work in the evening. तो flexible timing, you have got flexible hours. compressed work week का समझो एग्जाम्पल के थ्रू, मेरे पास 40 आवर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, 40 आवर्स मुझे कंप्लीट करने हैं एक वीक में, ठीक है। अब मैं 40 आवर्स कैसे कंप्लीट करूं? या तो मैं ये बोलूं कि मैं 20 आवर्स आज काम कर लेती हूँ, 20 आवर्स मैं कल काम कर लूंगी और बाकी 4 दिन मेरी छुट्टी होती। मैंने अपने वर्क वीक को कंप्रेस कर दिया और मैंने 4 दिन छुट्टी ले ली। या मैं आज बोलूं कि मैं आज 10 घंटे काम करूंगी, फिर मैं 10 घंटे काम करूंगी मंडे को, फिर ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को 10 घंटे, थर्सडे को 10 घंटे, इसमें मेरा 40 हो जाएगा। और मैं क्या करूंगी, मैं फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी छुट्टी हो जाएगी। या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, या मैंने बोला कि आज मैं 15 घंटे काम कर रही हूँ, ठीक है, और कल मैं 25 घंटे का या 20 घंटे काम कर लूंगी और बाकी बचे हुए 5 घंटे मैं बाद में कर। तो मैंने अपनी वीक को कंप्रेस कर दिया है कि मुझे बाकी छुट्टियां मिल जाए। दैट्स अ कंप्रेस्ड वर्क वीक। जॉब शेयरिंग इज व्हाट? जॉब शेयरिंग का मतलब कि मुझे HRM पढ़ाने को दिया है और मैंने अपनी जॉब शेयर कर दी नीता मैम के संग, और मैंने कहा मैम संडे को तो मुझे खान मार्केट जाना है खाना खाने के लिए, कि आप मेरा ये वाला काम कर दोगे, कैन यू टेक माय लेक्चर? सो आई हैव शेयर्ड माय जॉब विद हर, ठीक है। एंड देन वी हैव डी जॉबिंग। डी जॉबिंग का मतलब होता है कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल जॉब स्ट्रक्चर। हम अपने ट्रेडिशनल जो जॉब स्ट्रक्चर है कि ऐसे ही काम करना है, ट्रेडिशनल जॉब स्ट्रक्चर में फ्लेक्सी टाइम नहीं आएगा, कंप्रेस्ड वर्क वीक नहीं आएगी, जॉब शेयरिंग नहीं आएगा। ट्रेडिशनल में क्या है, जो मुझे काम दिया है, जितने घंटे के लिए दिया है, मैं उतने घंटे में अपना काम करूं, है ना। तो डी जॉबिंग ये कहता है कि आपको शिफ्ट करना है ट्रेडिशनल जॉब स्ट्रक्चर से, सो दैट द जॉब suits you better, suits your needs, suits the organization and the employees needs. तो डी जॉबिंग एक्चुअली क्यों करी जाती है उसको समझने की कोशिश करो। जब मैं आपको डी जॉबिंग करने को बोलूंगी, डी जॉबिंग में अगर मैं आपको बोलती हूँ फ्लेक्सिबल टाइम आप ले लो, कंप्रेस्ड वर्क वीक आप कर लो, जॉब शेयरिंग कर लो, देन व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट अ मोर डायनामिक एनवायरनमेंट फॉर यू टू वर्क। बहुत ही आपका डायनामिक और एम्पावर्ड वर्कफोर्स हो जाएगी, ठीक है। वर्कर्स अपने आप ऑटोनॉमसली काम करेंगे, दे विल टेक ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू मल्टीपल एरियाज ऑफ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डी जॉबिंग करी ही इसलिए जाती है सो दैट यू कैन ब्रॉडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉब by shifting from a traditional job structure in to another job structure, so that the employees become autonomous and they contribute more towards the organization. They have a flexible and an enjoyable work and they can work in different multiple areas of the organization. इसलिए डी जॉबिंग करी जाती है, ठीक है। So basically in डी जॉबिंग what we are doing is shifting from a traditional structure and making it a more dynamic and empowered, so that we can broaden the responsibilities of job. ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वर्क लोकेशन आपको सबको पता है। मेरा ऑफिस में काम करने का मन नहीं कर रहा है, आज मैं घर से काम करूंगी, आज मैं जा रही हूँ लंच में किसी के संग, तो मैं कैफे से काम करूंगी। इट कुड बी एनी अदर वर्क लोकेशन अपार्ट फ्रॉम योर ओन वर्क सोर्स लोकेशन, दैट्स एन ऑल्टरनेटिव वर्क लोकेशन। फ्लेक्सिबल वर्क schedules में हमारी ये सारी चीजें आती है। Any questions before we move to the question answers? Any questions? ये सब समझ में आया? चलो, let's move to the question answers.
शिखा वो जॉब री इंजीनियरिंग है, उसको जॉब री इंजीनियरिंग कर लो। इस वाले को आप जॉब इंजीनियरिंग नहीं, जॉब री इंजीनियरिंग कर लो। ओके, लेट्स सी, लुक एट द क्वेश्चंस। मैंने बोला था ना, पहली स्लाइड में बताया था कि हम क्या करते हैं, हमें टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन और रिक्वायरमेंट दोनों देखनी होती है, एंड दैट्स कॉल्ड अ जॉब डिजाइन, राइट? गुड, चलो, आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन. If you have not asked me any questions, so when I am asking you questions, I want each one of you to answer. Only Bindya and Poonam are not here in the class. Others also, Shikha, Garvita, I want you people to also answer. Question number 2. Why is it taking so much of time? Very nice. Okay, nice Akriti. तो इसमें सिंपल सी बात है, 1 and 3 would be the only answer because इसमें लिखा है स्किल वेराइटी इज नॉट कोर जॉब डायमेंशन, लेकिन वो कोर डायमेंशन था। हमने क्या क्या पढ़ा था? टास्क सिग्निफिकेंस, टास्क आइडेंटिटी, स्किल वेराइटी, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी ना। फीडबैक, ऑटोनॉमी, इसमें लिखा है इज नॉट अ कोर जॉब डायमेंशन वेरन इट इज अ कोर जॉब डायमेंशन। डी जॉबिंग का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था। डी जॉबिंग हम क्यों करते हैं? ब्रॉडनिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉब, इसलिए करते हैं हम डी जॉबिंग। नेम द थ्योरी कंसेप्ट थॉट कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग एंड शेपिंग जॉब्स टू फिट द फिजिकल एबिलिटीज, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई फटीग ना हो, कोई इंजरी ना हो। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्गोनॉमिक्स। When employer work longer days in exchange for longer weekends, then it is called क्या? Very nice. It is called as compressed work week. चलो, इसको मुझे बताओ, बहुत इजी है। अंकिता ने डी दिया है, बाकी सबने सी दिया है। लेट्स लुक एट द आंसर। अंकिता, डी कैसे आया है आंसर? चेक करो, द आंसर, करेक्ट आंसर इज सी।